رہے ہیں زندگی میں گول ہم نے یا ہدف، گول تقریباً سب کو انگریزی کا لفظ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے زندگی میں گول کیسے سیٹ کرنے ہیں، کیسے ہم نے گول بنانے ہیں تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پر آپ کے ہینڈ آؤٹس پر اگر آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں سب کے پاس، تو میں نے پہلے نمبر پر جو چیز لکھی ہے وہ ہے ڈریم بگ ڈریمز، بڑے بڑے خواب دیکھو، بڑے بڑے خواب دیکھو۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم بڑے خواب دیکھیں۔ تو جب ہم آج بات کرنے والے ہیں، اس چیز کو سمجھنے والے ہیں کہ کیسے زندگی میں گول سیٹنگ، گول بنانا، اپنے ٹارگٹس جو ہیں ان کو سیٹ کرنا کتنا اہم ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے جب ہم گول بناتے ہیں تو خدا ہمیں کامیابی سے بھی ہمکنار کرتا ہے اور ہم زندگی میں کامیاب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ہینڈ آؤٹس جو ہیں جو آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، ان کے بانٹنے کا ایک مقصد ہے، اور میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی نوٹ بک، اپنی پین اور اپنی کاپی ساتھ لے کر آئیں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں، چونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم 95% جو سنتے ہیں 72 گھنٹوں کے اندر بھول جاتے ہیں۔ 72 گھنٹوں کے اندر ہم 95% جو ہم نے سنا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میری یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ میں آپ تک یہ ہینڈ آؤٹس پہنچا رہا ہوں۔ کوالٹی شاید اچھی نہیں ہے لیکن ایک کوشش ہے میری، اس کو بہتر بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ ہم لکھیں۔ سیریس لرنر ہونا، سیریس سیکھنے والا ہونا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جتنے مرضی آپ لائق ہیں، جب تک آپ سیریس نہیں ہیں سیکھنے کے لیے، آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ میں اور بھی بہت ساری چیزیں اسٹڈی کر رہا ہوں، میری وائف کو پتہ ہے، کل میں نے سارا دن اسٹڈی میں گزارا۔ میں ان کو بہت سارے آئیڈیاز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی کو شیپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو میں کوشش کر رہا ہوں بائبلی ایمان کے مطابق تیار کر کے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آج ہم گول سیٹنگ پر بات کر رہے ہیں۔ تو خدا نے آپ کو یونیک بنایا ہے، خدا نے آپ کو بے مثال بنایا ہے۔ خدا کاپیز نہیں بناتا ہے، خدا کلونز نہیں بناتا، خدا آپ جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں، یقین جانیں آپ جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اور خدا آپ کو آپ کی برکتیں دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو بلندیوں تک لے کر جانا چاہتا ہے۔ جو آپ آج ہیں، خدا کل آپ کو یہاں نہیں بلکہ اس سے بہتر زندگی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے، خدا آپ کو بہتر مستقبل دینا چاہتا ہے۔ تو آج جب ہم گول سیٹنگ پر، گول بنانے پر، اپنے ٹارگٹس بنانے پر بات کریں گے، تو آپ جانیں گے کہ یہ پیغام آپ کے مستقبل کے اندر کتنا اہم کردار ادا کرے گا، آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر بنانے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کرے گا۔ 6 باتیں کیوں ہمیں گول بنانے کی یا گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 6 باتیں ہم جانیں گے کہ کیوں ہمیں گول بنانے چاہیے، گول سیٹ کرنے چاہیے اپنی زندگی کے لیے۔ جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو یہ 6 باتیں سیکھنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیسے یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر کیوں گول سیٹ کرنے چاہیے، کیوں زندگی کے اندر اپنے ہدف یا ٹارگٹس مقرر کرنے چاہیے، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روحانی ذمہ داری، آپ کے ہینڈ آؤٹس پر لکھیں، یہ روحانی ذمہ داری ہے، یہ اٹ از اے اسپرچول رسپانسبلٹی، یہاں میں نے پرسنل لکھا ہے اسپرچول رسپانسبلٹی، یہ روحانی ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم گول بنائیں۔ خدا خود گول سیٹ کرتا ہے۔ خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ تو خدا خود گول سیٹ کرتا ہے، خدا خود ہدف مقرر کرتا ہے۔ خدا نے کہا پوچھا، اور ایک دن میں سب کچھ ہونا ممکن تھا، لیکن خدا نے خود پہلے دن کام کیا، دوسرے دن کام کیا، تیسرے دن کام کیا، اور خدا نے
डिसाइड किया कि 6 दिन के अंदर वो सारी खलकत को बनाएगा, और 6 दिन में खुदा ने बनाया। मसीह खुदावंद ने अपने गोल्स है वो सेट किए। कैसे? मसीह खुदावंद जानता था कि वो किस काम के लिए इस दुनिया के अंदर आया। आपको याद होगा कि मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं यरूशलेम के अंदर जाऊंगा, यहूदी उस्ताद मुझे पकड़ेंगे, मसलूब कर देंगे और मैं जी उठूंगा। तो पतरस ने क्या कहा? पतरस कहता खुदा ना करे कि ऐसा हो जाए। मसीह खुदावंद ने कहा ऐ शैतान दूर। मसीह खुदावंद अपने गोल पर काम कर रहे थे। मसीह खुदावंद का निशान, मसीह खुदावंद का गोल, मसीह खुदावंद की मंजिल उसकी सलीब थी। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा शैतान दूर। तो मसीह खुदावंद अगर गोल सेट करता है, मसीह खुदावंद अगर अपनी जिंदगी के लिए उसने गोल सेट किए, तो फिर हमें क्यों गोल सेट करने की जरूरत नहीं है। तो पौलुस रसूल ने अभी जो आपने हवाला सुना है फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, तो पौलुस रसूल अपनी जिंदगी में एक गोल पर काम कर रहा है। उसकी जिंदगी का एक मिशन है, उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा प्लान है, टारगेट है या मिशन है या गोल है जिसके लिए वो जिंदा है। और अभी जो हवाला आपने सुना है यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है, गर्ज ये नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये मत ईमान गुमान नहीं कि पकड़ चुका, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा जाता। और निशान जो उर्दू में तर्जुमा है इसका मतलब है गोल की तरफ मैं दौड़ा हुआ जाता, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं गोल जो मैंने सेट किया है, जो निशान मैंने मुकर्रर किया है, मैं उसकी तरफ दौड़ा हुआ जाता। तो मेरे अजीजों, जिंदगी के अंदर गोल सेटिंग बड़ी जरूरी है। अगर आपका कोई गोल नहीं, आप मुर्दा। अगर आपकी जिंदगी का कोई मिशन नहीं, आप सिर्फ जिंदा रह रहे हैं सरवाइव करने के लिए। अगर आपकी जिंदगी का कोई गोल नहीं, आप अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, आप जिंदगी जाया कर रहे हैं। कोई मकसद नहीं जिंदा रहने का। खाया पिया सोए उठे फिर सो गए, काम किया खत्म हो गए। अब याद होगा एक दफा मैंने 3 जिंदगी के लेवल्स बताए थे, सर्वाइविंग लेवल, सक्सेस लेवल और सिग्निफिकेंट लेवल। बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, वीकेंड पर इंतजार करते हैं, छुट्टी होती है, बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, फिर हफ्ता शुरू होता है, खत्म हो जाता है, दैट्स इट। और आखिरकार वो जिंदगी खत्म कर दी। और कुछ लोग हैं जो सक्सेस के पीछे, कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, और कामयाबी जब मिलती है तो उसके बाद उनके अंदर कोई कमी उन्हें महसूस होती है, और सक्सेस से भी, कामयाबी से भी वो मुतमिन नहीं होते, किसी और चीज की तलाश में होते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है जिंदगी को, उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट, शानदार लेवल। सर्वाइव कुछ लोग सिर्फ जिंदा हैं, कुछ लोग कामयाबी के लिए जिंदा हैं, कुछ लोग शानदार जिंदगी के लिए जिंदा हैं, और जिसके लिए पौलुस रसूल ने कहा कि हम भूखों की मानिंद हैं लेकिन भुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, कंगालों की मानिंद हैं खुश रहते हैं, दिस है। तो बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आपका कोई गोल नहीं, तो आप दूसरों को अपनी जिंदगी दे रहे हैं कि वो आपको चलाएं। अगर मेरा कोई मिशन नहीं है जिंदगी के अंदर, तो कोई दूसरा मेरी जिंदगी को चलाएगा। आपने अपनी जिंदगी किसी दूसरे को दे दी है, इसलिए यह जिंदगी बड़ी खतरनाक है कि आपकी जिंदगी कोई दूसरा चलाए। किसी दूसरे के सहारे आप जिंदा रह रहे हैं, किसी दूसरे को आपने इख्तियार दिया है कि वो आपकी जिंदगी को चलाए। ये कैसी जिंदगी है? खुदा, मैंने अर्ज की, खुदा ने आपको यूनिक बनाया है। खुदा ने सिर्फ दुनिया में एक आप हैं, आप जैसा और कोई नहीं बनाया है। कोई आप जैसा नहीं है, क्योंकि आप वाहिद हैं इस दुनिया के अंदर। खुदा आपको बहुत प्यार करता है। और अगर आपका कोई गोल नहीं जिंदगी के अंदर, आपका कोई टारगेट नहीं है, आपका कोई निशान नहीं है,
तो आपने अपनी जिंदगी, फिर दूसरे लोग आपकी जिंदगी के बारे में गोल्स बनाएंगे, फिर दूसरे लोग आपको यूज करेंगे, फिर दूसरे लोग आपकी जिंदगी के साथ खेलेंगे, अगर आपका अपना कोई मिशन, कोई गोल, कोई मकसद नहीं। इसलिए खड़े हो और डिसाइड करें आज सो कि मेरी रूहानी जिम्मेदारी है कि मैंने अपना गोल सेट करना है जिंदगी के अंदर। ऐसे जिंदा ना रहे, खत्म हो जाएगी जिंदगी, बेकार जिंदगी खुदा उनको पसंद नहीं है। एक दरख्त मसीह खुदावन ने फरमाया फल नहीं लाता था, 3 साल तक मालिक ने इंतजार किया, जब नहीं फल रहा तो उसने बागबान से कहा इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके। तो मालिक ने कहा खुदा ने एक और साल इसे दे दे, अगर आगे को फला तो खैर, वरना इसको काट डाल। खुदा बेकार जिंदगियों से खुश नहीं। अगर आपका कोई गोल नहीं है, दूसरे आपकी जिंदगी पर राज करेंगे, दूसरे आपके खानदान के अंदर इंटरप्ट करेंगे, दूसरे आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए अपना गोल, अपनी मंजिल बना, ये हमारी रूहानी जिम्मेदारी। खुदा चाहता है कि हम गोल बनाए, खुदा चाहता है कि हम किसी ना किसी मकसद के लिए जिंदा, पर्पस या मकसद या गोल, ये सारी मिलती जुलती चीजें हैं। तो दूसरे नंबर पर गोल सेटिंग कितनी जरूरी है, या कैसे हम गोल बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि गोल्स आपके ईमान का बयान है। गोल्स बनाना, गोल सेट करना, गोल्स आर स्टेटमेंट ऑफ फेथ, कि गोल्स आपके ईमान का बयान करते हैं, इजहार करते हैं। अगर आपने गोल सेट किए हैं, इसका मतलब है कि आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर ईमान है। कोई गोल नहीं, कोई ईमान नहीं। अगर कोई आपका टारगेट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका ईमान भी कोई नहीं है। ईमान क्या चीज है? लिखा कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, जो आपने देखी नहीं। आपने गोल सेट किया, आपने देखा नहीं कि मंजिल क्या है, लेकिन आप उसके लिए जिंदा हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक रूहानी आदत है। अपने ईमान को स्ट्रेच करें, अपने ईमान को खींचे। जितना ईमान को खींचेंगे, उतना ज्यादा आप दुनिया के अंदर बरकत पाएंगे और कामयाब होंगे। बाइबल कहती है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। गोल्स आपके ईमान का इजहार है। जितना बड़ा ईमान है, उतना ज्यादा आप खुदा को खुश करते हैं। अगर आपका कोई गोल नहीं, आपका कोई टारगेट नहीं है, तो आप जिंदगी ज़ाया कर रहे हैं और आप ईमानदार भी नहीं है। आपके पास ईमान नहीं है। इफ्सियों तीसरे बाब की 20वीं आयत में क्या लिखा है? इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत। ये आयत मेरी जिंदगी की मिशन स्टेटमेंट है। मेरी जिंदगी इस आयत पर आप कह रहे हैं कि बड़ी हद तक पेश करती है। मैं इस आयत को अपनी जिंदगी की आयत समझता हूँ। तीसरे बाब की 20वीं आयत इफ्सियों। अब जो ऐसा कातिल है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। खुदा हमारे ख्याल, हमारे ईमान, हमारी दरख्वास्त से भी बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आप उतना मान नहीं सकते जितना खुदा दे सकता है। आपका उतना गोल बड़ा हो नहीं सकता है जितना खुदा आपको ब्लेस कर सकता है। इसलिए कहते हैं बड़ा खुदा, बड़े गोल्स। बिग गॉड, बिग गोल्स। टाइनी गॉड, टाइनी गोल्स। छोटा खुदा, छोटे गोल। बड़ा खुदा, बड़े गोल्स। नो गॉड, नो गोल्स। कोई खुदा नहीं, कोई गोल्स नहीं। अगर आपका खुदा बड़ा है तो आपके गोल्स भी बड़े होंगे आपके गोल। अगर आपका खुदा छोटा है, आप छोटी छोटी चीजों पर सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे। let the size of God determined by your goals, कि आपके खुदा का साइज आपके गोल्स के जरिए से पता चलना चाहिए। अगर आपके गोल्स बड़े हैं
तो आपका खुदा भी बड़ा है। अगर आपके गोल छोटे हैं, आपका खुदा भी छोटा है। बिग गॉड, बिग गोल्स, टाइनी गॉड, टाइनी गोल्स, नो गॉड, नो गोल्स। अगर आपका खुदा है तो बड़े गोल सेट करें, अपनी जिंदगी में बड़ा सोचें। मैं आपका पासवान होते हुए, आपका कलीसिया का खादिम होते हुए मेरी दुआ है कि आप आपकी जिंदगी खुशियों से भरे। मेरी दुआ है कि आप बहुत तरक्की करें। यकीन जाने, मैं चाहता हूं कि आप खुदा को उस तरह से देखें जैसे मैंने खुदा को देखा है। मैं चाहता हूं कि आप खुदा का उस तरह से तजुर्बा करें जैसे मैंने तजुर्बा किया। मैंने खुदा को बहुत बड़ा खुदा देखा है। ख्वाब देखी, ड्रीम बिग ड्रीम्स। कल मैं एक चीज स्टडी कर रहा था एम्बिशंस के बारे में, ख्वाबों के बारे में। तो ख्वाब के बारे में मुझे बड़ी जबरदस्त चीज यहां पर पढ़ने को मिली, और ये थी ड्रीम्स कैन ड्राइव योर लाइफ। ख्वाब आपकी जिंदगी को ड्राइव करते हैं। ख्वाब आपकी जिंदगी को एक फोर्स देते हैं कि आप अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। और किसी ने कहा ड्रीम्स मस्ट बी वेल डिफाइंड। ख्वाब जो है वो बेहतर तरीके से उनका पता होना चाहिए। यूसुफ की जिंदगी में यूसुफ किसी अपने भाई से बेहतर नहीं था। अगर कोई बेहतर उसके अंदर चीज थी तो वो ख्वाब देखने की सलाहियत रखता है। उसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। इसलिए ड्रीम बिग ड्रीम। दुनिया कल मैं एक अमेरिकन आदमी को स्टडी कर रहा था। वो कहता है कि दुनिया अमेरिका के अंदर आके है ड्रीम्स के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और उनके ख्वाब पूरे होते हैं। उनके ख्वाब पूरे होते हैं। आपके ख्वाब खुदा पूरे करना चाहते हैं। आपके ड्रीम्स जो आपके जो ख्वाब है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, उनका आपको पता होना चाहिए। यूसुफ एक बादशाह था, एक आम चरवाहे का बेटा, आम चरवाहे का बेटा। उसके भाई यूसुफ उस जैसे हैं, लेकिन बादशाह को बना, उसके ख्वाब उसे बादशाह बना दिए। आपके ख्वाब आपको ड्राइव करते हैं। आपके ख्वाब आपको जिंदगी की बड़ी बड़ी बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। आपने अब बहुत दफा हम कहते हैं कि फला बंदा बहुत गुड लक है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। कहते हैं कि बंदे की गुड लक बहुत है, उसकी खुशकिस्मती उसके साथ है। तो गुड लक के बारे में मैंने एक स्कॉलर का जो बयान पढ़ा, वो कहता है कि डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। डिलीजेंस या सख्त मेहनत, या आप कह लें कि आप जब मेहनत करते रहते हैं तो सख्त मेहनत जो है ये माँ है खुशकिस्मती की, गुड लक। गुड लक आपकी आपके पास है क्योंकि आप मेहनत कर सकते हैं। ख्वाब देखिए। अगर आप ख्वाब देखने वाले नहीं हैं, आप कमजोर हैं। कहते हैं कि ख्वाब देखने में कोई पैसे नहीं लगते। ड्रीमिंग डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। ख्वाब देखने में कोई पैसा नहीं लगता, आप ख्वाब देख सकते हैं। इसलिए बड़े ख्वाब देखें, और इसके साथ साथ बड़े ख्वाब देखें, साथ एक बड़ा जरूरी मशवरा जो मैं नौजवानों को देना चाहता हूं वो ये है, ड्रीम बिग ड्रीम्स, बड़े ख्वाब देखें, एंड सेट अ डेडलाइन। अपने गोल को सेट करें और उसके बाद एक डेडलाइन मुकर्रर करें। 2020 तक मैं ये काम खत्म करूंगा, 2025 तक मैं ये काम खत्म करूंगा। छोटे छोटे गोल्स ना बनाएं। टाइनी गोल, छोटा खुदा छोटे गोल्स, बड़ा खुदा बड़े गोल्स। आपका खुदा बड़ा है, बड़े गोल्स बनाएं। आप जानते हैं कि लोग नाकाम क्यों होते हैं? वो छोटे गोल्स बनाते हैं और जल्दी से उनको फिर वो पूरा होता हुआ लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तो बड़ी जरूरी बात यह है, बड़े गोल बनाएं। यहाँ पर मिलने के सेट अ बिग गोल, गो रेस्ट ऑफ योर लाइफ फॉर इट। एक बड़ा गोल बनाएं 2030 तक, 2025 तक, और सारी जिंदगी फिर उस पर काम करें। आप कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे। मेरा दावा है आप कामयाब होंगे। खुदा आपके खानदान के हालात बदल देगा, खुदा आपकी जिंदगी के हालात बदल देगा। बड़ा गोल बनाएं, सेट करें, और फिर सारी जिंदगी उस पर वर्क करें, लेकिन डेट फिक्स करें, डेडलाइन रखें। 2020 या 2025 या 2030, बड़ा ये आपको पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने गोल्स बनाएं, सेट करें। तो अगर आप डेडलाइन नहीं बनाते तो फिर भी खराब है। देखिए जरा मत्ती 9 बाब की 29वीं आयत में क्या लिखा है। मत्ती की इंजील उसके 9 बाब की 29वीं आयत। मैं फिर कहूंगा, आप नोट करें, नोट करेंगे। सीरियस लर्नर होना, तरक्की करने के लिए
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो 9वें बाब की 29वीं आयत मत्ती की इंजील में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, तब उसने उनकी, मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और 29वीं आयत, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे इत्तेकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो, जैसा आप इत्तेकाद रखते हैं वैसा आपके लिए होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के लिए गोल्स सेट करें, छोटे छोटे गोल्स ना बनाएं, फिर आप नाकाम हो जाएंगे। नाकाम होंगे, आप शिकायत करेंगे, खुदा से गिला करेंगे। इसलिए आपका खुदा बड़ा है, बड़े गोल्स सेट करें। आपका खुदा बड़ा है, बड़े ख्वाब देखें। यूसुफ को कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि वो छोटे ख्वाब देखने वाला था। उसने डायरेक्ट ख्वाब देखा, बादशाह बनने का ख्वाब देखा। डेडलाइन के बगैर जस्ट ड्रीम है, ड्रीम अच्छे हैं लेकिन डेडलाइन के साथ वो ज्यादा बेहतर होंगे। डेडलाइन बनाएं कि मैंने इस डेट तक, इन सालों में मैंने ये काम करना है, तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। नंबर 3, गोल्स फोकस माई एनर्जी, यानी कि गोल मुझे मेरी तवानाई को क्या करते हैं, मरकूज करते हैं। जब आप गोल सेट कर लेते हैं, सारी जिंदगी उस पर काम करें, सारी जिंदगी उसके सहारे जिंदा रहें, सारी जिंदगी उस पर वर्क करें, सारी जिंदगी आपका सोना, उठना, चलना, फिरना, आपकी मंजिल, आपका सब कुछ आपका गोल होने चाहिए। पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं ताकि किसी तरह से मैं उस तक पहुंचूं। हाफ-हार्टेड कमिटमेंट्स, जो आधे दिल से आप कमिटमेंट्स करते हैं, वो खराबी का बायस है। एक दफा मैंने इसी प्लेटफॉर्म से प्रीच किया कि आप मुझे अपनी कमिटमेंट बताएं, अगले 20 सालों में आप क्या बनेंगे, मैं आपको बता सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि अगले 20 सालों में आप क्या बनेंगे। आप मुझे अपनी कमिटमेंट, अपने गोल्स बताएं, मैं आपको बता सकता हूं अगले 20 सालों में आप क्या बनेंगे। जब आप अपनी तवानाई मरकूज करते हैं, ज्यादा मुसर नतायज आपको मिलते हैं, आप ज्यादा मजबूत होते हैं। दुनिया आप तब्दील कर सकते हैं, दुनिया आपको तब्दील होते हुए देखती है। लोग कहते हैं कि इस शख्स की मंजिल ये है। एक और मशवरा, डिस्ट्रैक्शंस, आपकी तवज्जो हटाने के लिए सारी दुनिया काम कर रही है, लेकिन आप अपने टारगेट पर, अपने गोल पर कायम रहें। ठीक है, अपने गोल्स पर आपने कायम रहना। तवानाई मरकूज करें, अपनी तवानाई सारी, पुट योर ऑल एनर्जी फॉर योर गोल्स एंड फोकस योर गोल। वेल फोकस्ड पीपल, जो लोग बहुत मरकूज करने वाले थे, उन्होंने दुनिया को मुतासर किया। दुनिया में बड़ा नाम उन लोगों ने छोड़ा है जो वेल फोकस्ड थे। कहते हैं कि एक बंदे को बहुत काम आते हैं, वो प्लम्बर भी है, वो इलेक्ट्रिशियन भी है, वो टीचिंग भी कर लेता है, कभी कभी वो कोई और भी काम कर लेता है। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। ठीक है, बहुत सारे लोग हर फन मौला होते हैं, किसी में भी वो माहिर नहीं होते। इसलिए एक काम करें, अपने गोल सेट करें और सारी तवानाई उस पर मरकूज कर दें, सारी एनर्जी उसको दे दें। जो भी आप करना चाहते हैं, आपको नतायज मिलना शुरू हो जाएंगे, नतायज आपको मिलेंगे, नतायज आपकी जिंदगी में आएंगे। वक्त जाया ना करें, वक्त जाया ना करें। एक और मेरा मशवरा जो आपके लिए है, जो जिंदगी में सेट होना चाहते हैं, वो करें जो ज्यादा मैटर करता है। खुदा हमसे हर चीज करने की तवक्को नहीं करता। खुदा मुझसे ये तवक्को नहीं करता कि मैं अच्छा किसी और फील्ड में भी हूँ। खुदा मुझसे ये तवक्को करता है कि मैं पासबान या प्रीचर या कलाम कितने नियत से या दयानतदारी से तैयार करता और सुनाता और पासबानी कैसे करता। खुदा मुझसे बहुत ज्यादा की तवक्को नहीं करता। खुदा मुझसे वो चाहता है जो मुझे करना चाहिए। इसलिए वो करे जो डू व्हाट मैटर मोस्ट, वो करे जो ज्यादा आपके लिए मैटर करता है, ज्यादा अहम है। हर काम ना करे, आप हर काम नहीं कर सकते। हर काम के लिए खुदा ने आपको नहीं बनाया। खुदा ने आपको एक काम के लिए, किसी खास स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया है, और आप अपनी कॉल को, अपने
अंदर के जो टैलेंट है उसको समझें और वो काम करें। बहुत सारे लोग इधर उधर जिंदगी जाया कर रहे हैं। तीन चीजें, वेस्ट योर लाइफ, स्पेंड योर लाइफ एंड इन्वेस्ट योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को जाया करते हैं, गुजारते हैं या सर्व करते हैं। यह आपका सबसे बेहतर सूरत यह है कि आप जिंदगी इन्वेस्ट करें। आपको पता है कि कारोबार में जितने आप पैसे लगाएंगे उतने कारोबार पैसे आपको देगा। जिंदगी अगर आप पैसे जाया करेंगे, जाया होगी। अगर आप सिर्फ उजाड़ रहे हैं, उजाड़ते जाएंगे। वेस्ट योर लाइफ, स्पेंड योर लाइफ एंड इन्वेस्ट योर लाइफ। अपनी जिंदगी अपने ख्वाब के लिए दे दे, अपनी जिंदगी अपने गोल के लिए दे दे, अपनी जिंदगी अपने खानदान के किसी बड़े मकसद के लिए दे दे, अपनी जिंदगी आप किसी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे दे। अपनी तवा नहीं मर, अपना टारगेट बनाए, गोल बनाए। खुदा आपके हालात को बदल दे। मेरा दावा है खुदा आपके हालात को बाकी चीजें छोड़े, सिर्फ वो करें जो ज्यादा मैटर करता है। खुदा नहीं चाहता कि आप सब कुछ करें। अपने मुस्तकबिल पर अपनी तवज्जो फोकस करें। अपने कैरियर को बनाने के लिए अपनी तवानाई मरकूज करें। अपनी जिंदगी के बारे में तवानाई मरकूज करें। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 9वें बाब की 26वीं आयत में क्या लिखा है? ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 9वां बाब और उसकी 26वीं आयत। 9वें बाब की 26वीं आयत लिखा है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता, उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि मैं औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल है। और जो मेन आयत है वो है 9वीं आयत, लिखा है कि मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना ना दौड़े, सारे काम ना करें। आप सारे काम नहीं कर सकते। एक काम, एक गोल बनाए, गोल सेट करें, बस अपनी तवानाई उस पर लगाए। मैं बेठिकाना नहीं दौड़ता, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी माने जो हवा को मार। ये पौलुस रसूल जबरदस्त खुदा का बंदा, एक जबरदस्त क्रिश्चियन को कहता है मैं हवा से, मैं बेठिकाना, आप बेठिकाना ना दौड़े। बेठिकाना दौड़ना जिंदगी जाया कर, जिंदगी जाया कर। चौथी बात कि हमने कैसे अपनी जिंदगी के गोल सेट करने हैं। गोल्स कीप मी गोइंग, यानी कि गोल मुझे चलते रहना सिखाते हैं। आपकी जिंदगी में दुख आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, गोल्स आपको उम्मीद देते हैं, आप चलते जाते हैं। क्योंकि आप ना दाएं मुड़ रहे हैं ना बाएं मुड़ रहे हैं। खुदा आपको जो आपने मुकर्रर किया अपने ज़हन में, आप उस पर कायम हैं। आप पर ना हवा असर करेगी, ना पानी असर करेगा, ना कुछ। गोल्स मुझे उम्मीद देते हैं, मैं चलता जाता हूं। चाहे मायूसी आए, डिस्करेजमेंट आए, हालात खराब हो, मैं चलता जाता हूं। गोल्स आपको मुस्तकिल मजाजी देते हैं। गोल्स आपको उसी खुदावंद का गोल, उसका निशान क्या था? स्लीप। लोग सता रहे थे, मार रहे थे, ताने दे रहे थे, लानत कर रहे थे। यीशु मसीह खामोश था। क्यों? उसने अपनी मंजिल तक जाना। आपका गोल, आपकी मंजिल, आपका टारगेट आपको चलते रहना सिखाता है। अय्यूब 6 बाब की 11वीं आयत में खुदा का बंदा अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब 6 बाब की 11वीं आयत। अय्यूब 6 बाब की 11वीं आयत। यहां पर लिखा है, मेरी ताकत ही क्या है जो मैं ठहरा रहूं, और मेरा अंजाम ही क्या है जो मैं सब्र करूं। यहां पर अय्यूब जो चीज बयान करता है वो ये है कि शायद गोल के बगैर मेरे अंदर ताकत नहीं और मैं ठहर नहीं सकता। अगर आपका गोल में आप ठहर नहीं सकते, आप जल्दी से किसी भी बहाव में बह जाएंगे। चलते रहना, आपकी मंजिल, आपका गोल आपको चलते रहना सिखाता है कि चलते जाओ। एक और बात, फेलियर इज द ओनली वे टू सक्सीड एंड टू मूव। आप फेल होने से, नाकामी से बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन नाकामी एक रास्ता है जिससे आप कामयाब होते हैं। नाकामी से आप आगे बढ़ सकते हैं। नाकामी
आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। नो फेलियर, कई लोग कहते हैं नो फेलियर बट एजुकेशन, नाकामी नहीं बल्कि ये तालीम है, आप तालीम से सीख रहे हैं। फेल मोर एजुकेटेड फास्ट, कहते हैं कि जितनी जल्दी आप फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, उतनी जल्दी आप तालीम याफ्ता होते हैं। जितनी जल्दी आप नाकाम होते हैं, उतनी जल्दी आप तालीम याफ्ता हो जाते हैं। सो इसलिए बड़े गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल आपकी जिंदगी में आएंगे। हो सकता है डिस्करेजमेंट, मायूसी आए, नाउमीदी आए, लेकिन आपने चलते रहना, चलते जाना है। एक और चीज, लर्न टू फेल फास्ट, कहते हैं कि जल्दी से फेल होना सीखो ताकि जल्दी से कामयाब हो सको। लर्न टू फेल फास्ट, जल्दी से फेल होना सीखो ताकि जल्दी से कामयाब हो सको। अब फेल होने पर ही तो जुड़ा कर लेगा, मैंने पहले फेल हो गया फिर कामयाब होना है। इसका मतलब यह है कि नाकामियों से ना डरे, आपकी मंजिल, आपके गोल आपको चलते रहना सिखाएंगे। पांचवी बात, हमने कैसे अपनी जिंदगी के गोल सेट करने हैं। पांचवी बात जो है यह है कि गोल जो है मेरे किरदार को बनाते हैं। गोल्स बिल्ड माय कैरेक्टर, गोल्स मेरे किरदार को बनाते हैं। मैं जब मेरी कोई विजन है, मेरी कोई रोया है, मेरा कोई गोल है जिंदगी में, तो ये वाहिद जरिया है कि आप खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। जब आप कोई काम, जब आप चाहते हैं, आपकी कोई विजन होती है या गोल होता है, तो ये वाहिद तरीका है कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। खुदा आपकी कामयाबी से भी ज्यादा आपके किरदार में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि किरदार आसमान पर आपके साथ जाएंगे, कामयाबी आपके साथ आसमान पर नहीं जाएगी। किरदार, आपका किरदार साथ जाएगा। तो जब आपका गोल है, आपकी विजन है, आपकी रोया है, तो आप उस पर काम करते हैं, आप अपने किरदार को बनाते हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं आई एम वर्किंग ऑन माई गोल, गॉड इज वर्किंग ऑन मी। जब आप अपने गोल पर काम करते हैं, खुदा आप पर काम करता है। खुदा आप पर कभी काम नहीं करेगा, खुदा आपके खानदान में कभी काम नहीं करेगा अगर आप किसी गोल पर काम नहीं कर रहे। अगर आप फारग हैं, यानी कि मेंटली, ज़हनी तौर पर आप फारग हैं, आपका कोई आपकी मंजिल, आपका टारगेट नहीं, खुदा भी आपके साथ आप पर काम नहीं कर रहा। आई एम वर्किंग ऑन माई गोल, गॉड इज वर्किंग ऑन मी। मैं अपने गोल पर काम कर रहा हूं, खुदा मुझ पर काम कर रहा है। खुदा फिर काम करता है जब हम काम करते हैं अपने आप पर। और एक मैं बहुत बड़े आदमी के बारे में पढ़ रहा था, वो कहता है डोंट वर्क हार्ड, वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप पर सख्त मेहनत करो, अपने आप पर मेहनत करो। अगर आप अपने आप पर मेहनत करेंगे, आप बहुत कामयाब होंगे। कैरेक्टर, वर्क ऑन योर गोल, गॉड विल वर्क ऑन यू। आप अपने मिशन पर, अपने टारगेट पर काम करें, खुदा आप पर काम करें। सही बात। एक और मैंने चीज पढ़ी, मुझे बड़ी मुतासिर उसने किया कि वर्क मोर देन यू पेड, गॉड पेड फॉर इट। यानी कि आप उसके जिससे जितना आपको पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करें, ये कामयाबी है, क्योंकि इससे आप लोगों की नजर में आती है। ठीक है, तो खुदा आपके किरदार पर, आपके किरदार, जब आप गोल्स आपके किरदार को बनाते हैं, अगर आपका किरदार नहीं है, आप कुछ नहीं। अगेन पौलुस रसूल ने फिलिपियों के खत के 3 बाब की 12वीं आयत में कहा कि मैं निशान की तरफ क्या करता हूं, दौड़ा हुआ चाहता हूं। छठी और आखिरी बात, हम कैसे जिंदगी में गोल सेट कर सकते हैं, और वो ये है अच्छे गोल्स का अजर और इनाम है। गुड गोल्स विल बी रिवॉर्डेड। अच्छे गोल्स जो हैं, गोल्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आप बुरे मिशन पर भी काम कर सकते हैं, अच्छे मिशन पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन खुदा अच्छे गोल्स या अच्छे मिशन का अजर देता है। अगर आपका मिशन अच्छा है, खुदा आपको अजर देगा, आपको अजर मिलेगा, जमीन पर भी और आसमान पर भी। जमीन पर भी अजर मिलेगा, आसमान पर भी अजर मिलेगा। और कहते हैं कि अच्छे गोल जो हैं ये आपकी लेगेसी सेट करते हैं, बनाते हैं। अमसाल 11वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है कि लोग आपकी तब इज्जत करते हैं जब आपके गोल्स अच्छे होते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करके जाते हैं। अमसाल 11वें बाब की 27वीं आयत लिखा है, जो दिल से नेकी की तलाश में है मकबूलियत का तालिब है, लेकिन जो बदी की तलाश में है वो उसी के आगे आएगी।
जो बदी की तलाश में है वो उसके आगे आएगी, लेकिन जो दिल से नेकी की तलाश में है वो क्या करेगा? मकबूलियत हासिल करेगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। बड़े बड़े नाम, मार्टिन लूथर किंग, उसने इंसानों की आप कह लेंगे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की। उसने इंसान ने अच्छे गोल पर काम किया, लोग उसकी इज्जत करते। जो लोग बड़े मिशन के लिए, अच्छे गोल के लिए अपनी जिंदगी दे देते हैं, खुदा उन्हें सरफराज करता है। खुदा उन्हें जमीन पर और आसमान पर दोनों पर इज्जत देता है। बड़े मकसद के लिए, अच्छे मकसद के अपनी जिंदगी देना। अगर मकसद बुरा है तो कोई इज्जत नहीं हो, कोई इज्जत नहीं। अच्छे मकसद की, अच्छे गोल की इज्जत। तो जब आप गोल बनाए, जब आप गोल सेट करें तो आपका गोल अच्छा होना चाहिए। पहले नंबर पर कैसे हम जान सकते हैं कि गोल अच्छे हैं या बुरे हैं? पहले नंबर पर आप ये देखें, क्या ये गोल खुदा के नाम को जलाल देता है? अगर ये खुदा के नाम को जलाल देता है तो ये गोल अच्छा है। खुदा के नाम, खुदा प्रायोरिटी है, सबसे पहले खुदा है। अगर आपके गोल से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता, आपका गोल गलत है, वो लालच है, वो गोल नहीं है। दूसरे नंबर पर क्या इस गोल के पीछे मोहब्बत है? इसके पीछे कोई फियर, एंजाइटी, यानी कि कोई गुरूर, तकब्बर, डर, खौफ तो नहीं है इस गोल के पीछे? अगर ऐसा है तो ये गोल अच्छा है। क्या इस गोल के पीछे मोहब्बत है? अगर नहीं है तो ये गोल अच्छा नहीं। पहले नंबर पर क्या ये गोल खुदा के नाम को जलाल देता है? अगर देता है तो अच्छा गोल है। क्या ये गोल, इस गोल के पीछे खुदा की मोहब्बत है, के पीछे मोहब्बत है? अच्छा गोल है। तीसरे नंबर पर क्या इसके लिए खुदा पर तवक्कुल की जरूरत है? अगर आप कोई गोल ऐसा है जो आप खुद ही कर सकते हैं तो वो खुदा की आपको जरूरत नहीं। इसलिए तीन और बातें नोट करें अपने गोल के बारे में। मुझे खुदा की गोल जब आप सेट करते हैं तो तीन बातें और ध्यान में रखें। मुझे खुदा की रूह की जरूरत है। जकरिया 4 बाब की 6 आयत में लिखा है कि ना जोर से ना तवानाई से मेरे रूह से हो जाएगा। मुझे अपने गोल को पाने के लिए खुदा के रूह की जरूरत है। दूसरे नंबर पर मुझे खुदा के कलाम की जरूरत है ताकि मुझे गाइड करे। जब भी आप गोल सेट करते हैं, पहले खुदा की मदद की जरूरत है, दूसरे नंबर पर खुदा के कलाम की जरूरत है। यकीन जानिए, जितने मर्द बाइबल थे वो कामयाब हुए हैं। खुदा ने यीशुआ से कहा था, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना मुड़े, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान, न इसे दाएं मुड़ना न बाएं, तब तुझे खूब कामयाबी और इकबाल। जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतने आप कामयाब होंगे। ये बात बिल्कुल सच्ची है। मोर रीडिंग मोर सक्सेस। जितनी बाइबल पढ़ेंगे उतनी कामयाबी आपकी जिंदगी में आएगी, क्योंकि बाइबल आपको सिखाएगा। और तीसरा कानून, मुझे मेरे गोल के लिए मुझे खुदा के लोगों की जरूरत है। मुझे खुदा के लोगों की जरूरत है। आपकी जिंदगी के मकसद पूरे करने के लिए इंसान किरदार अदा करते हैं। मैं बहुत इस बात पर जोर देता हूं, आपको दूसरे इंसानों की जरूरत है। आपकी जिंदगी की कामयाबी के पीछे या आपकी जिंदगी की कामयाबी में बहुत सारे लोग किरदार अदा करते हैं। आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते। आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते। पहले नंबर पर मुझे खुदा की जरूरत है, दूसरे नंबर पर मुझे खुदा के कलाम की जरूरत है, और तीसरे नंबर पर मुझे खुदा के लोगों की जरूरत है। अकेला आदमी कामयाब नहीं हो सकता। अकेला आदमी जिंदगी में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उसे दूसरे लोगों की जरूरत है। किसी ना किसी ने आपकी जिंदगी में आपको कुछ बनाने के लिए किरदार अदा किया है। अमसाल की किताब का जो बड़ा मजमून है वो यह है रिलेशनशिप। आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके बहन, आपके भाई, आपके अजीज, आपके अच्छे फ्रेंड्स जो है, आप आपको कुछ बनाते हैं। किसी भी इंसान को बनाने के लिए लोगों की जरूरत है। अकेला आदमी कुछ नहीं बन सकता। वायस 4 बाब की 12वीं आयत में क्या लिखा है? वायस 4 बाब की 12वीं आयत। और अगर कोई एक पर गालिब हो, ये 11वें से पढ़ ले, 12वीं आयत। अगर कोई एक पर गालिब हो तो वो उसका सामना कर सकते हैं, और तेहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। तेहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। इसका मतलब ये है लोग आपकी जिंदगी में किरदार। हम बाज़ औक़ात लोगों की नाखतरी करते हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं समझते।
हम सोचते हैं कि मेरा सबके बगैर गुजारा है, मैं बहुत चीज हूं। आपको लोग चाहिए, दो चीजें हमेशा कायम रहेंगी, लोग और खुदा का कलाम। अच्छे गोल्स, खुदा से अजर मिलता है और जमीन पर भी लोगों से भी अजर मिलता है। आप जमीन पर अपनी लेगेसी सेट करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं। अगेन मार्टिन लूथर, मदर टेरेसा और बड़े बड़े नाम, इन्होंने अपनी जिंदगी अच्छे मकसद के लिए दी। खुदा ने उन्हें जमीन पर भी इज्जत दी, आसमान पर भी उनकी इज्जत दी। मैं अकेला कुछ नहीं, आप अकेले कुछ नहीं है, आपको खुदा के लोगों की जरूरत है। बहुत ही स्मार्ट खान ना बने, कोई भी ना बने, खुदा पर तवक्कल करते रहे, ज्यादा बाइबल पढ़ें। कैसे हमने अपनी जिंदगी की गोल सेट करने हैं, कैसे गोल सेट करना हमारी मदद कर सकता है? तो पहले नंबर पर ये हमारी क्यों गोल सेट करना, ये हमारी रूहानी जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर ये हमारे ईमान का इजहार है। तीसरे नंबर पर गोल्स मेरी तवानाई को मरकूज करते हैं। और चौथे नंबर पर गोल्स जो हैं ये मुझे चलते रहना सिखाते हैं, गोल्स कीप मी गोइंग। और पांचवें नंबर पर गोल्स मेरे किरदार को बनाते हैं, मेरा किरदार बनता है गोल्स। और छठा, खुदा से भी अजर मिलता है और इंसानों से, यानी कि गोल्स जो है मुझे अजर देते हैं, मेरे लिए अजर का बायस है या इनाम का बायस है, जमीन पर भी और आसमान पर। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी जाया ना करें। आप अगर अपने गोल पर काम करेंगे, खुदा आप पर फिर काम करेगा। एक चीज मैंने पढ़ी, खुदा कब इंटरवीन करता है, कब खुदा मुदाखलत करता है? तो एक बंदा कहता है जब आप तैयार होते, जब आप तैयार होते हैं खुदा फिर आपकी जिंदगी में मुदाखलत करता है। जब आप तैयार नहीं होते, खुदा आपकी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता। आप बाइबल उठाकर देखें, जितने लोग तैयार थे खुदा ने उनकी जिंदगी में मुदाखलत किया। और लिखा कि एंड देन गॉड इंटरवीन, यानी कि जब लोग तैयार थे, दे वर वेटिंग, उन्होंने जमीन पर अपना किरदार अदा किया। आपने से अपने गोल पर काम किया, फिर खुदा ने आप पर काम किया। इसलिए तैयारी, प्रेपरेशन बड़ी जरूरी है। तैयारी करें। छह बातें ज़हन में रखें। मेरी रूहानी जिम्मेदारी है कि मैं गोल सेट करूं। गोल मेरे ईमान का इजहार करेंगे कि मेरा ईमान कितना है। गोल मेरी तवानाई को मरकूज करेंगे। गोल सेटिंग जो है ये मुझे चलते रहना सिखाएगी। गोल सेटिंग मेरे किरदार को बनाएगी और अच्छे गोल्स का मुझे अजर और इनाम मिलेगा। इसलिए नो गोल नो गॉड, टाइनी गोल्स टाइनी गॉड, छोटा खुदा छोटे गोल, बड़ा खुदा बड़े गोल, नो गोल नो गॉड, यानी कि कोई खुदा ना, अगर गोल नहीं है तो खुदा। आप खुदा का साइज आपने बनाना है। बड़ा खुदा होगा तो बड़े आप गोल बनाए, छोटे ना बनाए। ये मेरी मर्जी है कि मैंने कई दफा इसके बारे में बात किया कि आपने खुदा का साइज मुकर्रर करना है कि खुदा कितना बड़ा है। आप जैसा खुदा को देखेंगे, खुदा आपके लिए वैसा बनेगा। इसलिए बड़े खुदा को बड़ा खुदा बनाए। बड़ा खुदा हमारे मांगने से, हमारी दरखास्त से, हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा काम करने की कुदरत। जितना मर्जी मांगे खुदा उतना ज्यादा आपको दे सकते, उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसके सामने कोई चीज मुश्किल नहीं है। अपने सरों को झुकाएं और